वो पीजीटी ग्राउंड में चलता हुआ गया पैदल बीच में जाके बोलता है बंदे को कि अरे यार तेरे को मैं कई बार बोल रहा हूँ तू इस रस्से फट्टी को ऐसे क्यों नहीं मान देता। तो असेसर वाज एस्टोनिश्ड, वो देख रहा है कि यार ये बंदे ने सारे रूल तोड़ दिए, इसने कोई रूल नहीं छोड़ा तोड़ने से। एंड देन असेसर आस्क्ड कि जेंटलमैन व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट द रूल्स, तुम व्हाट लैंग्वेज आर यू यूजिंग एंड व्हाई आर यू वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। अभी पूरा ग्रुप खड़ा होकर असेसर की तरफ देख रहा है एंड दैट गाय टर्न्ड हिज बैक टुवर्ड्स द असेसर। उसने बंदे की तरफ देखा, वो सिटिंग, और उसको बोलता है चल चल दुपट्टा लगा दुपट्टा लगा। इलाहाबाद में जो अकोमोडेशन होता है उसके साइड में मंदिर होता है, फ्रेश ही वहां से हाँ। मंदिर में से ढोलक चुरा के लेके आ रखे हैं अपने उसमें। ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी कि व्हाट वर दोस व्हाट वर व्हाट, मतलब तुम क्या कर रहे थे जो तुम्हारा नहीं हो पाया। तो आई टोल्ड सर मैं खेती करवा रहा था। आई स्ट्रेट अवे टोल्ड हिम इन हिंदी, सर मैं खेती करवा रहा था। तो सोच ले तू चांद का तारों पे तेरी घात हो, जो शाम काफी है नहीं तो रात का तू यार हो, स्वप्न तू ये देख ले उसी को पाना आस हो। Hello everyone. Today I have with me a very dear friend of mine, AIR 72 Series OTA, Mr. Gaurav Chaudhary. He has given 10 attempts and he finally got recommended in his 10th attempt with me. So it has been a very roller coaster of a journey. Today we will explore all his experiences, take insights and learnings, and share some of the fun incidents. Stay tuned and watch the full podcast. Thank you. हेलो गौरव भाई, वेलकम टू कोटिडियन थंडर। अभी तक की जर्नी आपकी बहुत रोलर कोस्टर रही है। सो टेल अस अबाउट योर 10 अटेम्प्ट्स। आपकी जर्नी अभी तक की कैसी रही? व्हाट ऑल एक्सपीरियंसेस यू हैव सीन? टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आई कम फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा एंड आई बेसिकली लिव इन अ स्मॉल विलेज एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ एसएसबी इन 2022 फ्रॉम 31st October 2022 was my first SSB एंड उसके बाद 10 अटेम्प्ट्स दे दिए, गोट रिकमेंडेड इन माय 10th अटेम्प्ट। And but if I talk about the journey of my overall preparation, it was a 7-year long journey. I started preparing from 2018, 17, 18, and yes, between in the journey it was, as you have said, it was like a roller coaster. उसमें अप्स भी थे, डाउन्स भी थे। जब रिटर्न्स क्लियर होते थे, स्क्रीनिंग हो जाती थी, तो it was a very joyful moment. And but then when we got rejected in returns, screen outs होते थे, conference outs आते थे, so it was a moment of sadness. So it was like that. But the best part of the journey, I would say, it was making the kind of people that I met. It was a gift that was given to me. क्योंकि आप जब इस तरह की जर्नी में होते हो, तो यू मीट पीपल हु आर लाइक माइंडेड, सेम माइंडसेट वाले लोग। एंड यू मेट पीपल True. जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड देन यू ऑल्सो गेट कैंडिडेट्स जिन्हें आप कुछ सिखाते हो। सो इट इज लाइक अ म्यूचुअल फ्रेटर्निटी, कि आपने एक म्यूचुअल फ्रेटर्निटी के आप मेंबर बन चुके हो। सो आई फील fortunate to have become the part of that club. So that's what about it. Great, great. Tell me, Gaurav bhai, tell me about your family background. What does your father do? You come from a very humble background. So tell us about that. uh, my family occupation is farming. मेरे पापा खेती करते हैं। एंड देन we are 4 siblings and we are 6 family members. My father, mother, and I have 2 other brothers and a sister as well. So my brother he's a team leader in a company in Gurgaon. And my father, again, as I've already told, that he's engaged in agricultural activities. My mother is a homemaker, and my sister, she's happily married. And I have a younger brother who is also preparing for the same. He will also be joining defense services soon. So that's about my family background. See, your younger brother is also following your footsteps. I hope he Yeah. will join the forces soon. That's great. So 10 attempts, Gaurav bhai. 10 attempts is a very long journey. So I just want to know कि what kept you motivated? इतना लंबा time, अगर same process जाना हो again and again and again. So इतना क्या मतलब कैसे motivate कर रहे थे खुद को कि I'll go again. I know that I have the potential और मैं जाके इस बार crack तो करूंगा ही. I am for the defense forces. So tell us the motivation behind it. शिवेंद्र भाई, जब हम उस प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाते हैं ना,
स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जब स्टार्टिंग में एसएसबी देते थे तो इट वाज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस एंड वी वर डेस्परेट टू गेट स्क्रीन इन और टू गेट रिकमेंडेड। बट देन उसके बाद क्या होता है कि एक दो बार आप आउट होते हो एंड देन एंड यू स्टार्ट डेवलपिंग एन एक्सेप्टेंस कि यू, फिर उसके बाद फेलियर्स आते हैं, यू एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट एंड देन यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। वो जो प्रोसेस होता है आप उसको भी एंजॉय करने लग जाते हो। व्हाट केप्ट मी मोटिवेटेड वाज कि एवरी टाइम आई फेस्ड अ फेलियर इट ओनली मेड मी मोर स्टबर्न। मेरे को लगता था कि अगर मैं अब की बार फेल हुआ हूं तो इट ओनली इंक्रीज्ड माय विल पावर कि यार अब तो यही करना पड़ेगा, अब तो यही करना है। तो इट वाज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड ऑल्सो जब हम फैमिली की तरफ देखते हैं वी ऑल्सो नो दैट family has high hopes when you when you have embarked on a journey and you have been sustaining for a very long time, then it doesn't then you start feeling that यार इतनी इतनी आगे तक पीछे जाने के लिए तो नहीं आए हैं। सो मोटिवेशन तो वो हवा में ही होती है। फिर यू ब्रीथ मोटिवेशन, यू ब्रीथ इन मोटिवेशन, यू ब्रीथ आउट मोटिवेशन। सो failures, there has been failures, and every time when you start improving yourself you get a step closer, you get a step closer. So when you every step that you are getting near to your objective, उसके बाद तुम यू कैनॉट गिव अप। उसके बाद फिर आपको लगता है कि यार अब तो ये ग्राफ आगे की तरफ ही जा रहा है। सो इट वाज नॉट अबाउट गेटिंग रिकमेंडेड और नॉट। उस चीज में कभी डाउट नहीं रहा कि रिकमेंड होंगे या नहीं। डाउट भी नहीं कहूंगा, बट इट वाज मोर टेस्ट ऑफ पेशेंस कि आप किस अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाओगे। सो बस वह सस्टेन ही करते रहना था कि इम्प्रूव करते रहो और गलतियों को पकड़ते रहो, इम्प्रूव करते रहो, गलतियों को पकड़ते रहो, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू गेट व्हाट यू डिजायर फॉर। वो चीजें फिर रिजल्ट लेके आती हैं। ग्रेट गौरव भाई, ये मोटिवेशन ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर कि जितने भी लोग सुन रहे होंगे, जिनको लग रहा होता है कि अब गिव अप कर देना चाहिए, इतना अटेम्प्ट्स हो गए, बट यू गेटिंग रिकमेंडेड इन योर 10th attempt and getting merit and soon going to the academy is a very peak motivation for everyone. So 10 attempts में बहुत सारे किस्से हुए होंगे, नो डाउट। बहुत सारे फनी किस्से हुए होंगे एंड बहुत सारे इंस्पायरिंग किस्से हुए होंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल जंपिंग ऑन योर 10th अटेम्प्ट, उससे पहले वाले अटेम्प्ट्स आपके कैसे रहे, और वन बाय वन उसके कोई इंसिडेंट्स शेयर कर सकते हो तो वो करो कि हाँ, इंटरव्यू में व्हाट यू थिंक वाज वेरी फनी, और या फिर क्या लर्निंग्स रही, वो शेयर करो अपने पुराने अटेम्प्ट्स में से। आई वुड से कि जितने भी नो के नो अटेम्प्ट इससे पहले रहे, एक चीज तो बहुत कॉमन थी कि देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग। हर किसी में बहुत ज्यादा लर्निंग रही, क्योंकि अगर मुझे रिकमेंड होना होता तो मैं पहले में हो जाता। बट इट वाज द लर्निंग्स आई वाज सपोज टू लर्न। आई बिलीव एज द लक वुड हैव इट, आई वाज सपोज टू लर्न अ लॉट, ओनली देन आई वाज गुड टू नो। एबल टू गेट थ्रू। बट अगर मैं फनी इंसिडेंट्स की बात करूं, देयर आर अ लॉट, देयर इज अ लॉट। क्योंकि बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे, और बहुत सारे इंसिडेंट्स वो होते हैं जो आप सुनते हो बाकी कैंडिडेट से। तो आई टेल यू सम ऑफ देम जो मेरे सामने हुए। व्हेन आई वाज गिविंग माय फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, जब मैंने अपना पहला एसएसबी देखा, आई वाज वेटिंग। माय फर्स्ट एसएसबी वाज ऑन 31st October 2022। आई वाज सिटिंग इन 2 AFSB Mysore एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय इंटरव्यू एंड आई वाज वेटिंग। तो मेरे से जो पहले वाला कैंडिडेट था वो निकल के आया बाहर रूम से, वो मेरे पास से होके निकल रहा था, वो क्राइंग आउट लाउड, बहुत तेज रो रहा था। आई आस्क्ड हिम क्या हुआ, एंड ही स्टार्टेड कर्सिंग, ही स्टार्टेड स्वेरिंग ऑन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। मैंने बोला क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि यार मैं जो भी बोलता हूँ ये मेरी बात ही नहीं मानता। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या बोल रहा है, तो इसने बोला कि यार मेरे से पूछता है ये कि आपने अपनी हॉबीज के बारे में बताओ। तो मैंने अपनी हॉबीज के बारे में बताया, कहता चल मैं नहीं मानता। वो जो भी बोल रहा है उसको उसका इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोल रहा है चल मैं नहीं मानता। तो कहता है उसको कि अब यार मैंने सर्टिफिकेट उसको लगाए हुए हैं, अब क्या मैं छाती फाड़ के दिखा दूंगा इसको। एंड ही वाज क्राइंग आउट लाउड। तो फिर वहां पे उसको एनसीओ आगे उसको पकड़ के लेके गया। एंड एक और इंसिडेंट हुआ कि हमारा जीटीओ चल रहा था एक में, एंड देयर वाज अ कैंडिडेट जो पीछे खड़ा हुआ था। पीजीटी की बात थी, इट वाज डे 3 और पीजीटी का स्टार्ट हुआ था। एंड देयर वाज वन कैंडिडेट हु वाज सिटिंग बिहाइंड। ऐसा होता है ना कि हर ग्रुप में एक ऐसा कैंडिडेट मिलेगा हु इज ऑलवेज हु हैज अ फियर ऑफ फोमो, है ना, हु हैज अ फोमो। तो वो पीछे खड़ा हुआ था, उसकी कोई बातें नहीं सुन रहा था। तो उसने कई बार बोला, वो अपना आइडियाज दे रहा है इंग्लिश में कि जेंटलमैन यू डू दिस, वो रस्से को इधर लगाओ, उसको रस्से को बांध दे, फटा लगा दे, ये कर दे, वो कर दे।
एंड द असेसर वाज सिटिंग देयर। अभी उसने कई बार बोला, उसकी बात किसी ने सुनी नहीं, एंड दैट गाय लॉस्ट इट एट द एंड। वो पीजीटी ग्राउंड में चलता हुआ गया पैदल बीच में और जाके बोलता है बंदे को कि अरे यार, तेरे को मैं कई बार बोल रहा हूँ, तू इस रस्से फट्टी को ऐसे क्यों नहीं मान देता। तो असेसर वाज एस्टोनिश्ड, वो देख रहा है कि यार ये बंदे ने सारे रूल तोड़ दिए, इसने कोई रूल नहीं छोड़ा तोड़ने से। एंड देन असेसर आस्क्ड कि जेंटलमैन, व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट द रूल्स, तुम व्हाट लैंग्वेज आर यू यूजिंग एंड व्हाई आर यू वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। अभी पूरा ग्रुप खड़ा होकर असेसर की तरफ देख रहा है, एंड दैट गाय टर्न्ड हिज बैक टुवर्ड्स द असेसर। उसने बंदे की तरफ देखा, वो सिटिंग, और उसको बोलता है चल चल तू फट्टा लगा, फट्टा लगा। he did not give anything, he didn't give a dollar about the assessor। उसने कर दिया वहां पे सारा काम। तो जहाँ पे इलाहाबाद में गया था, इट वाज 11 एसएसबी इलाहाबाद। तो जहाँ पे फ्रेशिस होते हैं ना, जो डरे हुए होते हैं, किताबों से पढ़ रहे होते हैं, तो मैं था और हाँ मेरा हाँ दोस्त था। तो हमने सोचा कि यार चलो फ्रेशिस का थोड़ा मजा लेके आते हैं। तो हम गए उनका थोड़ा बहुत उनसे बातचीत करने। तो मैं अपने दोस्त से, अपने बड़ी से यही डिस्कस कर रहा था कि यार ये बहुत डरे हुए होंगे, घबरा रहे होंगे, तो चलो इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं ना, और डराते हैं। हम अंदर गए, वी वर सरप्राइज टू सी देम। इलाहाबाद में जो अकोमोडेशन होता है उसके साइड में मंदिर होता है। फ्रेशी वहां से हाँ मंदिर में से ढोलक चुरा के लेके आ रखे हैं अपने उसमें बैरक में, और वो अपने ढोलकों को ढोलक पीटने लगे हुए हैं, और वो एंजॉय कर रहे हैं। मतलब दोस पीपल वर हैविंग द ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। उस एसएसबी में अपना ढोलक बजा रहे हैं वो, और हमसे आके बोलते हैं कि अरे परेशान मत हो, टेंशन मत लो, आओ हमें ज्वाइन करो। मतलब वो लोग हमें दिलासा देने लग गए उल्टे, वो फ्रेशिस थे। दोस फ्रेशिस मेड अस फील लाइक फ्रेशिस। सो ये मेरे को ऐसा लग रहा है ये फ्रेशी कहीं और से पहले से ट्रेनिंग लेकर आ रखे हैं ये लोग घाट घाट का किसी कोचिंग का पानी पी के आए हैं तो दे वर नॉट फीलिंग नर्वस एट ऑल। हाँ, ऑब्वियसली यार, ये आजकल ये फ्रेश ना इतने प्रैक्टिस करके आ रहे हैं कि दे डो नॉट फील लाइक देयर इनटू द एसएसबी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कई कई बार उन टेस्ट्स को रिपीट करके आ रखे होते हैं। तो एक और इंसिडेंट मैं बता दूं कि डिस्कशन जब हमारा, हम स्क्रीनिंग चल रही थी, हमारा पीपीडीटी की बात थी ये, एंड इट वाज इन देहरादून, 1 एफएसपी देहरादून में मेरा एफकेट का पीपीडीटी चल रहा था, एंड आई वाज सिटिंग देयर। अभी नाउ आई विल टेल यू हाउ स्मार्ट पीपल कैन बी, हाउ स्मार्ट कैन रिपीटर्स कैन बी। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि, है ना, कि वो जीटीओ अपना खड़ा हुआ, और जीटीओ साहब ने सब कुछ बता दिया डिटेल्स में कि जेंटलमैन, यू हैव ऑल बीन मेड इनटू, मेड सिट इनटू अ सेमी सर्कुलर फैशन, और आप अपनी स्टोरीज को बताएंगे, और उसके बाद आप एज सून एज यू कंप्लीट, तो आप अपनी नेक्स्ट बंदा अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देगा, और जैसे लास्ट बंदा अपनी स्टोरी बताएगा तो वो डिस्कशन चालू हो जाता है ना जीडी। उसके लिए वो बताते नहीं है अलग से। हाँ हाँ एज सून एज द लास्ट पर्सन हैज कंप्लीटेड हाँ हिज स्टोरी, डिस्कशन चालू हो जाएगा। बट हमारा डिस्कशन चालू करने का क्यों क्या होता है कि जब बंदे ने अपना थैंक यू बोल दिया होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टोरी, हाँ एवरीबडी सेज थैंक यू। अभी अभी क्या हुआ कि जो लास्ट वाला बंदा था, अभी हमने सबने अपनी स्टोरी थैंक यू के साथ नरेट कर दी। उस बंदे ने अपनी स्टोरी बोली, खत्म करी, एंड उसने बोला अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद कि जेंटलमैन, एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ अस हैव गिवन द टॉपिक, द थीम्स ऑन दिस एंड दिस, सो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू ऑन दिस एंड दैट। उसने थैंक यू नहीं बोला, और हम सब सोच हाँ रहे हैं कि ये मे बी इट वाज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। उस ही टुक अ गुड 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड तक उसने जीडी स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद सबको पता चला कि अरे ये तो जीडी स्टार्ट हो गया है। एंड देन एवरीबॉडी वाज लाइक अ हेडलेस चिकन, सब अपना अपना कूद रहे हैं कि अरे अरे अरे, ये वो दैट गाय, एंड सब उसने ही कोट एवरीबॉडी ऑफ गार्ड। दिस दिस वाज द, मतलब इट वाज द एपिटोम ऑफ स्मार्टनेस ऑफ अ रिपीटर, आई वुड से। ग्रेट ग्रेट यूज ऑफ माइंड। हमारे जब वी वर टुगेदर इन द सेम एसएसबी हमारी स्क्रीनिंग के टाइम पे भी आई गेस सेम ही चीज हुई थी एंड उस टाइम पे भी वो जो एंड वाला बंदा था उसने थैंक यू कुछ नहीं बोला ही जस्ट जम्प्ड इनटू द ग्रुप डिस्कशन और हमें एक दो सेकंड लगा रियलाइज करने में कि ये क्या हुआ है क्योंकि इतनी स्मार्टनेस तो हमने कभी नहीं दिखाई। होता है भाई, तो ये ये हाँ इंसिडेंट ऐसे होते ही है। हैपेंस। और मैं अपने पहले अटेम्प्ट की सही बात है बता दूं। इतनी। पहले अटेम्प्ट हाँ में, हाँ जब मैं मैसूर में था, तो वी स्टार्टेड विद द पीपीटीटी। हमारे रूम में 6 असेसर्स बैठे हुए थे। नाउ इमेजिन, तुम पहले ही बार अपना एसएसबी देने जा रहे हो, 6 असेसर्स तुम्हारे स्क्रीनिंग में आ जाए, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रेशर। हम अब बैठे हुए हैं, और मेरा दूसरे नंबर पे था, आई वॉज नंबर 2। तो जो नंबर 1 था, आई स्टिल वंडर कि यार व्हाट दैट गाय मस्ट हैव बीन थिंकिंग, कि उसने ऐसी स्टोरी बनाई कि आई थिंक दैट वाज द मोस्ट हिलेरियस स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। एंड जो भी स्टोरी को सुनेगा, इट वुड बी द मोस्ट हिलेरियस स्टोरी।
पिक्चर थी उसमें 4 बंदे टिल्टेड हैं, थोड़े आगे झुके हुए हैं और उनके हाथ में वो क्लाइंबिंग कर रहे हैं स्नो में. इट वाज अ स्नोई बैकग्राउंड and it was able to anybody could have been able to understand that humanoid shapes थी and they were bent and they were uh, climbing the hill. उसमें क्या हुआ, उस बंदे की पिक्चर, नाउ इमेजिन, उस बंदे की पिक्चर थी कि जेंटलमैन इन द पिक्चर, इन द गिवन पिक्चर आई परसीव्ड 4 goats and those 4 goats went up the hill to graze some grass. After grazing the grass, the leg of one of the goat slipped and it was about to fall from the cliff. During that time, the hero goat came running. It caught the leg of the victim goat, pulled it off and saved its life. And then the victim goat looked into the eyes of the hero goat with gratitude. And काफी क्रेजी स्टोरी है we भाई could ये तो literally hear the assessors giggling. Assessors अपने मुंह नीचे करके, and while that time that guy was narrating his story, the assessors were laughing like anything. So बहुत बहुत experiences रहे, बहुत experiences रहे. ये बियॉन्ड इमेजिनेशन हो गया, ये तो And स्टोरी then कोई listen, सोच उसके कैसे बाद भी क्या पा हुआ रहा है पता नहीं। कि when he got screened out obviously, that guy वो अपना सर पकड़ के कह रहा है, oh shit यार, कहाँ गलती कर दी मैं, कहाँ मैंने गलती कर दी जो मैं स्क्रीन आउट हो गया. वेरी So ऑब्वियस। खैर घर जाके मेरे उसने साथ तो ये एनालाइज किया चीजें होगा तो समझ में आया होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मेरे साथ चीजें चालू हो गई कॉमेडी होनी तो. फर्स्ट अटेम्प्ट से ही इतना रोलर कोस्टर, इतना फन एक्सपीरियंस रहा है। बढ़िया बढ़िया। अभी लास्ट अटेम्प्ट पे आते हैं, 10th अटेम्प्ट पे। एंड ओके. इतनी लर्निंग्स रही है आपकी थ्रू आउट दी जर्नी। तो गौरव भाई, 10th अटेम्प्ट में ऐसा क्या रियलाइजेशन था, या फिर ऐसी क्या चेंजेस थे ओवरऑल, आपने क्या रियलाइज किया कि अभी इस अटेम्प्ट में यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, आई विल गेट थ्रू इन दिस अटेम्प्ट, और आप रिकमेंड भी हो गए? तो क्या चेंजेस थे, क्या लर्निंग्स थी, आपने किस चीज पे काम किया, थोड़ा वो बताओ। आई वुड से कि पिछले 9 अटेम्प्ट्स में, और आई वाज लुकिंग टू गेट रिकमेंडेड आउटसाइड ऑफ मी. मैं आसपास अपने एनवायरमेंट्स में रिकमेंडेशन ढूंढ रहा था. डिटेल्स में बताऊं तो आई वाज डिपेंडिंग टू मच ऑन जीके. आई वाज, वो होता है ना कि तुम सोचने लग जाते हो कि यार बाहर से ऐसा क्या लेके आया जाए. बाहर दुनिया में आप दवाई ढूंढने लग जाते हो, आप टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करने लग जाते हो, आप मिथ्स को सीरियस लेने लग जाते हो. बट दिस टाइम आई स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड, मतलब इनसाइड मी. मैं अपने अंदर झांका मैंने, एंड आई वुड से इट वाज अ वेरी हाई लेवल ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. एंड ये तो हो गया, चलो इंटरव्यू पार्ट का ये हो गया. एंड उसके बाद अगर साइकोलॉजिकल पार्ट के ऊपर आए तो यू मस्ट बी, ये इट इज अ पार्ट दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर. अभी आई डोंट एग्री विद द फैक्ट दैट यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर साइक. आई से दैट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड. क्योंकि इफ यू हैव टू डिस्प्ले सर्टेन क्वालिटीज, अगर आपको कुछ क्वालिटीज वहां पे डिस्प्ले करनी है, तो यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर. क्योंकि जहां पे तुम्हारा एक एक वर्ड स्क्रूटनाइज होता है, तो यू मस्ट बी वेरी अवेयर कि तुम्हें किस तरह के वर्ड्स वहां पे यूज करने हैं. एंड दैट शुड नॉट, यू शुड नॉट रिलाई ऑन योर स्पॉन्टेनिटी फॉर दैट. अब वहां पे रैंडम चीजों को तो लेके नहीं बैठ सकते. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई साइक. मैं, बट अगेन, साइक मस्ट नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो साइक आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है. आप जो टैट की स्टोरीज लिख रहे हैं, इट मस्ट कम फ्रॉम योर ओन लाइफ, इट मस्ट कम फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस. बिकॉज आपकी, यू मस्ट नॉट बी बाउंडेड बाई इमेजिनेशन. ओपन इमेजिनेशन होनी चाहिए. एंड मैंने एक और चीज जो नोटिस की है कि हम, जो हमारी एक्चुअल में लिमिटेशंस हैं वो हमारी साइक में भी दिखती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एसआरटी. एसआरटी में इफ somebody इज फियरफुल, तो उसका जो एसआरटी में जो उसको स्टिमुलस दिया जाएगा, उसका जो रिस्पॉन्स होगा, उसमें भी यू वुड बी एबल टू नो कि ही, दैट पर्सन विल बी हेजिटेटिंग टू टेक प्रॉम्प्टेड, मतलब प्रीएम्प्टिव एक्शन, वो नहीं ले पाएगा. सो आई वुड से कि अगर अगर अप्रोच चेंज करनी है तो उसको इस हिसाब से किया जाए दैट यू स्टार्ट थिंक लाइक यू हैव बीन कमीशन्ड एंड यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर. अब उस जगह पे एक ऑफिसर क्या करता, अगर आप एक ऑफिसर होते तो आप क्या करते, और उस तरह का जो एक्शन लिया जाता, उस एक्शन को आप वहां पे लिखिए, उस एक्शन को आप अपने टेट में लिखें. तो वही चीज मैंने किया, एंड इट केम टू बी फ्रूटफुल टू मी. इट केम विद गुड रिजल्ट्स. उसके बाद
डू नॉट बी, आई वॉज नॉट बाउंडेड बाई स्किल्स। मैं पहले क्या करता था कि इफ आई डो नॉट हैव अ स्किल, अगर मैंने वो अभी तक नहीं सीखी है जो कि मुझे सीख लेनी चाहिए थी, अगर मैंने अभी नहीं सीखी तो आई वुड नॉट राइट माई रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट। मैं उस स्किल में लिमिटेड रहूंगा एसआरटी में, एंड दैट हैपेंस विद एवरीबॉडी। जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम गुड एट स्विमिंग बट आई हैव सीन कैंडिडेट्स कि अगर कोई बंदा नीचे पानी में गिर गया है एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड ऑफ देम टू गेट इनटू वाटर, दे वुडंट। अगर रीजन पता करूं तो इट वाज कि क्यों वो कहते हैं कि हमें स्विमिंग नहीं आती। तो इसके ऊपर मेरा टेक क्या है कि यू स्टार्ट थिंकिंग कि आपने एकेडमी पास कर ली है और एकेडमी में आपको स्विमिंग सिखाई जाती है, तो नाउ यू आर अ स्विमर। तो अगर आपको स्विमिंग आती तो आप क्या करते? सो इट इज मोर अबाउट माइंडसेट एंड नॉट नॉट डोंट बी बाउंडेड बाई फिजिकल लिमिटेशंस। देन टॉकिंग अबाउट माई जीटीओ, आई हैव ऑलवेज बीन अ टीम प्लेयर। मेरे को टीम्स के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग अबाउट माई जीटीओ। जीटीओ के एवरी टास्क वाज, इट वाज ग्रेट। आई ऑलवेज एंजॉय जीटीओ। I always try to give best, and I have always thought about my team first and my individual benefits later. So I was just natural in my GTO, and it all paid off. But yes, GTO में you have to listen to your team as well. You cannot play as a private player. So it is something I always do, and I got Hari Jhandi from everywhere. Uh, Gaurav bhai, your experiences through the 10 SSB attempts have been very vast. बट अभी जो एज अ फ्रेशी बंदा स्टार्ट कर रहा हो, उसको बहुत सारे सजेशंस हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, मेरा भी चैनल है, तो उसको बहुत सारा एम्पल ऑफ ज्ञान तो है, बट वो एज अ फ्रेशी उसको ये नहीं पता कि क्या फिल्टर करना है क्या नहीं करना। बट जो बंदा 10 अटेम्प्ट्स दे चुका है एंड इतना एक्सपीरियंसेस ले चुका है, घाट घाट का पानी पी चुका है, अपने पर्सपेक्टिव से ये बताओ कि कोचिंग उसको करनी चाहिए, यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, पर्सनालिटी पे कैसे काम करना चाहिए, एक एसेसर होना चाहिए उसके पास, या फिर वो खुद ही अपने ऊपर काम कर सकता है? शिवेंद्र भाई, आई वुड से कि गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइडेंस बहुत जरूरी है। SSB is something you will not get recommended by doing hard work, but you will get recommended by working hard in the right direction. मेरे साथ पिछले 9 अटेम्प्ट्स में यही तो हुआ। आई हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस। मैंने एक दो जगह से कोचिंग भी करी, मैंने पर्सनलाइज्ड असेसर्स भी हायर किए, एंड आई पेड अ गुड मनी। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे काम कौन आया? मेरे काम आए जो मेरे दोस्त थे। सम ऑफ द पीपल वर रिकमेंडेड, सम ऑफ द पीपल वर नॉट। किसी से कहीं कुछ थोड़ा सीखा, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, थोड़े से डाउट्स क्लियर किए, एंड देन आई अंडरस्टूड कि गेम में हो क्या रहा है। सो टू अ फ्रेशी आई वुड से, अगर आपको गाइडेंस जहां जहां मिलती है आप गाइडेंस जरूर लें, बट यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू शो योर मेच्योरिटी। एक फ्रेशी में और एक रिपीटर में एक यही डिफरेंस रहेगा कि अ रिपीटर विल, बाय द टाइम अ रिपीटर बिकम्स अ रिपीटर, ही हैज बिकम हार्डकोर, मतलब ही हैज बिकम मैच्योर्ड। उसका जो टेक है, ही स्टार्ट्स गेटिंग लेस नर्वस। और जो एक फ्रेशर होता है, अगर आप उसको देखोगे तो वो एक रात पहले भी बुक्स को पढ़ रहा होगा, ही वुड बी लर्निंग जीके। और अगर आप एक रिपीटर को देखोगे या एक प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट को देखोगे, वो ही वुड बी हैविंग ग्रेट टाइम विद हिज बडीज। वो गाने गा रहा होगा, कहीं कहीं कुछ मैस में खाने पीने का जुगाड़ लगा रहा होगा, वेट कैंटीन में बैठा होगा। ठीक है, तो ये चल रहा होता है। सो आई वुड से कि प्रोसेस टेक को इट, एंजॉय कर रहा होगा। हाँ, एंजॉय द प्रोसेस। और तैयारी घर से करके जाओ, प्रिपेयर फॉर एसएसबी, अपने आप को बहुत अच्छे से जानो। और गाइडेंस लेने में आई वुडंट से कि कोई बुराई है, बुराई बिल्कुल नहीं है, बट डो नॉट बी लिमिटेड बाय देयर गाइडेंस ओनली। उन्होंने ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही तरीका वो 200 लोगों को बता रहे हैं, बट आउट ऑफ दोस 200 पीपल 5 और 10 आर एबल टू गेट रिकमेंडेड, वेयर एज 190 आर नॉट। सो इट इज नॉट, ये तो डेफिनेटली फिर कोचिंग का तो नहीं रहा ना। इट इज अबाउट इंडिविजुअल पर्सन एज वेल, हाउ दे वर एबल टू यूटिलाइज इट। सो जो वो क्वालिटीज होती हैं, वो कोचिंग आपको बस डिस्प्ले करने के लिए बता देगी कि आप ये क्वालिटीज डिस्प्ले करोगे। एंड बेसिकली शिवेंद्र भाई, ये तो आपको भी पता है कि कोचिंग में तो आपको प्रोसेस से फेमिलियर कराया जाएगा। दे विल नॉट टेल यू हाउ टू गेट रिकमेंडेड, दे विल टेल यू व्हाट आर द टास्क दैट यू हैव टू क्लियर। सो कोचिंग में तो वही पर्सपेक्टिव रखें कि अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस, एंड देन अगर आपको क्लियर करना है तो आप अपने बारे में जानो। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट योर लिमिटेशंस, योर स्ट्रेंथ्स,
अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, एग्जाम्पल्स से सीखो कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, और उसको आपको बस 3 अलग-अलग फ़िल्टर्स में दिखाना है। जीटीओ को भी उसी फ़िल्टर से आपको जीटीओ देखेगा, एक फ़िल्टर से आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखेगा, उसी से आपको साइक देखेगा। सो बेसिकली दे आर ऑल रूटिंग फॉर दोज़ 15 क्वालिटीज़, बट it is your responsibility to develop and display those qualities. So guidance लो, but don't be limited by guidance. Explore yourself and then perform and go with confidence. डिफरेंट एनालिसिस कैसे करते थे? मैं मेरा क्वेश्चन का फ्रेमिंग ये है कि अ, बंदा सेम है, एसएसबी अटेम्प्ट्स दे के आ रहा है बार-बार और अभी उसको वापस से एनालाइज़ करनी है परफॉर्मेंस, तो अपनी अप्रोच एनालाइज़ करने की अप्रोच में वो क्या डिफरेंस कैसे अप्रोच करे या फिर क्या वे फॉलो करे कि उसको थोड़ी चीज़ें दिखे कि हाँ, यहाँ कमी रह रही थी? Uh, I would say कि आपके थॉट्स में, आपके एक्शंस में और आपके बोलने में सिंक्रोनाइजेशन था या नहीं? फर्स्ट थिंग इज समथिंग दैट आई वुड से, एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन हैज अ बिग रोल इन इट। अगर आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा रहा होगा, एंड अगर वो आपने जो सोचा है, व्हाट बेसिकली एसएसबी इज व्हाट, आपने जो सोचा आपने वही बोला और आपने वही किया। तो अगर उन 3 चीजों में सिंक्रोनाइजेशन है, और उसके बाद आपके थॉट्स में अगर वो 15 OLQs आप डिस्प्ले कर पा रहे हो, तो आपको एनालिसिस में भी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने कौन सी वाली ऐसी क्वालिटी थी जो आप डिस्प्ले नहीं कर पाए। एंड सेकेंड थिंग आई वुड से कि हैव समबडी विथ यू हु इज इन द सेम जर्नी। अब जब भी आप एक दूसरे से कंसल्ट करोगे, समटाइम्स इट हैपेंस कि you are not able to understand where you went wrong, but the buddy with whom you are practicing, he will be able to point it out. ग्रेट ग्रेट इनसाइट गौरव भाई। अभी नाउ कमिंग टू योर 10th अटेम्प्ट इन व्हिच यू गॉट रिकमेंडेड। सो उसके बारे में इंडिविजुअल ईच एंड इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं पूछूंगा, बट मैं जो चीज़ें आपने इंटरैक्ट करके आपको पता चली होंगी कि हाँ इस टाइम मैंने क्या आंसर्स दिए बेटर, तो मेरे को अपने इंटरव्यू के बारे में बताओ। बिकॉज एज वी वर टुगेदर इन द सेम एसएसबी, आई हर्ड कि आपका इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग गया था। तो टेल अस अबाउट कि आपका इंटरव्यू कैसा था एंड क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे गए? Basically, my interview lasted for about 45 to 50 minutes, and it was quite long compared to the candidates. बाकी जो लोग थे, उनको वो हमारा जो असेसर साहब थे, वो 20 से 25 मिनट में खत्म कर दे रहे थे। तो हम्म, I went there, and while I was sitting, he did not ask me any CIQ. उन्होंने मेरे से एक भी CIQ नहीं पूछा, and he simply started off कि okay गौरव, टेल मी अबाउट योर पास्ट अटेम्प्ट्स। तो मैंने उनको बताया कि सर ये मैंने अटेम्प्ट्स सो एंड सो, दिस आर माय अटेम्प्ट्स, एंड ये सब रहा। सो ही स्ट्रेट अवे वेंट टू कि अपने दोस्तों से कंपैरिजन करके बता दो कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज अच्छी हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज अच्छी हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू डू नॉट हैव। तो आई वाज दिस टाइम आई वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ही आस्क्ड मी कि गौरव, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड? सो आई सेड सर, आई रीड न्यूज़पेपर, व्हिच आई डू। He asked me which newspaper, so I told him it was Indian Express. So he told me, okay, tell me the chief editor of Indian Express. So in my previous attempts, it used to happen कि I used to justify my shortcoming. मैं उसका रीजन देने लग जाता था. So had the same question been asked to me, और अगर मुझे उसका आंसर पता ना होता, तो मैं बोलता कि सर, I will find about it, I will tell you later, or I will tell you in the conference. This time I told to him, sir, I don't know. So he told me, he asked me to, maybe he was trying to build up pressure. So he told me कि, okay Gaurav, tell me any editor of Indian Express. I again told him, sir, I don't know. I don't know, sir. So he told me कि, okay. So Gaurav, why should I take you as an officer in the Indian Army? You don't know any GK, and you don't even know about the chief editor or any editor in the Indian Express. So I straight away told him, sir, I don't think GK is very important to get into the army. So मैंने उसको ऐसे ही बोला कि सर, मुझे नहीं लगता फौज में जाने के लिए जीके चाहिए, या फौज जीके काम आती है फौज में। तो ही आस्क्ड मी कि ओके, हाँ, देन फिर क्या काम आता है? तो आई टोल्ड हिम कि सर, लीडरशिप काम आती है। सो ही आस्क्ड मी, ओके, टेल मी अबाउट योर लीडरशिप। सो देन आई टोल्ड हिम अ फ्यू थिंग्स अबाउट माय स्ट्रेंथ्स, दैट इज व्हाट। एंड देन ही आस्क्ड मी कि ओके गौरव, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड?
सो हुँ। और मैंने ये चीज एक कहीं से मतलब आई ऑल्सो केम टू लर्न अबाउट इट, सो आई displayed my sense of humor as well. So when he asked me कि okay Gaurav, do you have a girlfriend, I asked him कि sir, do you find me handsome? So he told me कि Gaurav, you're a 6 feet chap and you look handsome, you're tall enough and you have a good personality, you must be having a girlfriend. So I told him, sir, unfortunately girls don't have observational skills like you do. So he laughed it off. गुड वन। And then so it was, कभी वहां पे jokes आ रहे थे and sometimes it was serious. For example, मेरे 12th class के बाद I took a 2 year gap because I was preparing for engineering and other competitive exams. So he told me, Gaurav, okay, why you were not able to clear it? I told him, sir, I had limited resources. I was not able to clear it. So he asked me, कि what मतलब तुम क्या कर रहे थे जो तुम्हारा नहीं हो पाया? So I told him, sir, मैं खेती करवा रहा था. I straight away told him in Hindi, sir, मैं खेती करवा रहा था. So he again laughed it off. He said, okay, okay, खेती करा रहे थे. So he told me कि okay, after 2 years of your gap, when you were not able to make it, तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स परेशान नहीं हुए? तो did not they tell you कि you have wasted 2 years? वो उन्होंने फिर क्या बोला? मैंने उन्हें बोला असेसर साहब को कि सर मेरे पापा ने बोला तीसरा ईयर भी गैप ले ले. So I told him कि sir, my family was supportive. So my answers were quite blunt. So this time I was very truthful to him. आई थिंक इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ बहुत पसंद आती हैं कि आप जितना ऑनेस्ट रहो। क्योंकि जितने लोगों से इंटरैक्ट करो, कोई ये भी सजेशन देता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आप चीज़ें फेक कर दो या झूठ बोल दो। बट वो उतनी एक्सपीरियंस के साथ बैठा हुआ है कि वो इतना तो पता लगा ही लेता है कि हाँ, हाउ बिल्कुल यू भाई, हैव बिल्कुल. बीन और तुम्हारी। बिल्कुल. तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने दैट पुराने आपके एसएसबी अटेम्प्ट्स में जिसमें यू सेड अ लाई एंड यू रियलाइज इमीडिएटली कि यार ये झूठ लगता है पकड़ा गया है, कि ये वापस से सेम क्वेश्चन घुमा के ला रहा है और मैंने गलती कर दी, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा कोई Indeed इंसिडेंट it हुआ है happened. पुराना? Indeed भाई, indeed. I was हाँ। sitting in my conference in Dehradun, not conference. I was giving my interview in Dehradun. तो मैं पीआईक्यू जब मैं भर रहा था, इट वाज नॉट प्लान्ड, बट मुझे लगा कि यार ये जो इनकम वाला सेशन होता है ना पीआईक्यू में, कि आप कितने पैसे कमाते हाँ। हैं. आई सिंपली हम्म। फिल्ड 15,000 रुपीज और उसमें मैंने लिख दिया कि मैं कोचिंग में रिटर्न्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोचिंग देता हूँ मैं फॉर द रिटर्न्स. जी। सो हम्म। एंड इट वाज अ डिजास्टर. देन व्हाइल आई वाज सिटिंग इन माय इंटरव्यू, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड मी कि ओके गौरव, सो एंड उसने मेरा इंटरव्यू ही इसी पॉइंट से स्टार्ट किया. जाते ही वो मुझसे पूछता है कि ओके गौरव, यू आर वर्किंग समवेयर. आई सेड यस सर. तो ही आस्क्ड मी कि ओके कहाँ काम करते हो? तो मैंने से बताया कि सर आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आई मेक माई ओन मनी, कि मैं यहाँ पे कोचिंग में पढ़ाता हूँ जाकर जाके. तो ही आस्क्ड मी हम्म। कि ओके कौन सी क्लास तक बच्चे आते हैं? आई टोल्ड हिम सर 10th क्लास तक आते हैं. ही सेड ओके. एंड देन ही टोल्ड मी कि आपका टाइमिंग क्या है? तो मैंने बोला सर 9 से 2 तक. ही टुक अ सेकंड, ही टुक अ 1 सेकंड का पॉज लिया साहब ने, नीचे देख के तब मेरी तरफ देख के बोला कि गौरव, उस टाइम तो बच्चों का क्लास स्कूल चल रहा होता है. एंड आई वाज तो लाइक ये कि यार, प्रोसेस थोड़ा सोचा नहीं था। हाँ, आई वाज लाइक कि अरे ये तो सिलेबस से बाहर आ गया. तो आई टुक अ सेकंड एंड आई रिकंसाइल्ड माय थॉट्स एंड डीप डाउन आई न्यू कि काम तो हो गया अब यहाँ पे. उड़ता हुआ तीर ले लिया है। ये हाँ, उड़ता हुआ तीर नहीं भाई, पूरा मिसाइल छेड़ दिया मैंने उड़ता हुआ. सो देन आई टोल्ड हिम कि सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बच्चे तैयारी करते हैं उसमें 10th तक का सिलेबस पढ़ाता हूँ, तो वो तो आते हैं, ड्रॉप ईयर लिए हुए उन्होंने. एंड ओह! देन ही वाज लुकिंग इनटू माय आईज एंड ही वाज लाफिंग. गुड ही कवर गेव अप। दैट he gave that sigma smile कि अरे bloody I caught you. And you're still fighting. गुड कवर अप, गुड कवर अप। So सही है, आई विल like टेल यू वन इंसिडेंट ऑफ माइन आल्सो। Same thing happened with me in my SSB interview. It was AFSB only, and the interviewing officer asked me, ki, "Okay, tell me about your." I had written in my PIQ somewhere that I also do meditation. So he told me कि अच्छा अपना डेली स्केड्यूल बताओ, स्टार्ट करो। तो मेडिटेशन मैंने लिखा था कि मैंने कुछ टाइम के लिए किया था बट कंटिन्यू नहीं किया था। तो मैंने बस लिख दिया कि चलो लिख देते हैं क्या है, क्या ही पता चलेगा।
तो व्हेन ही आस्क्ड मी अबाउट माय डेली रूटीन, तो मैंने शुरू किया कि सर सुबह उठता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, आता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, ये वो, फिर शाम को घूमते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो वो थोड़ी देर तक सुना उसने, मैंने अपनी खत्म कर दी राम कहानी। उसके बाद बोलता मेरे को कि तो ये आप मेडिटेशन कब करते हो? तो फिर मैं दो दो सेकंड के लिए तो उसकी आंखों में देखा, मैंने बोला सर कभी कभी करता हूँ। तो उस टाइम पे तो आई रियलाइज कि चलो हो गया। इंटरव्यूज आर माय इंटरव्यूज हैव ऑलवेज बीन फुल ऑफ फकअप्स यार। मैं आई वाज सिटिंग इन माय फर्स्ट इंटरव्यू, एफकैट का मैं इंटरव्यू दे रहा था एफएसबी में, एंड ही आस्क्ड मी कि गौरव टेल मी व्हाट इज द नियरेस्ट व्हिच इज द नियरेस्ट एयरफोर्स स्टेशन टू योर हाउस। फरीदाबाद में है मेरे में, लॉजिस्टिक्स का। अच्छा। आई टोल्ड हिम सर चंडीगढ़। ओके। और चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन भी नहीं है, इट इज इन अंबाला। मैंने एक ही क्वेश्चन के दो गलत आंसर दे दिए। एंड ही वाज लुकिंग एट मी एंड ही वाज लाफिंग आउट ऑफ पिटी। एंड देन ही आस्क्ड मी, फिर उसने थोड़ा सा लेवल ड्रॉप किया कि उसने मुझसे पूछा कि ओके गौरव टेल मी द नेम ऑफ इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट। एंड while that time I was sitting like this and I told him answer was and I मैंने उसको आंसर किया सर जगदीप अहलावत, which had to be Jagdeep Dhankad. I answered him sir Jagdeep Ahlawat. Now imagine a graduate person who is sitting in front of you and he doesn't even remember the correct name of vice president. Then he उसने अपना level और drop किया. Then he asked me, okay Gaurav, tell me the name of India's president. मुझे उसका I was sitting there. I knew the surname was Murmu, but I forgot that her initial name was Draupadi. So I was sitting there and taking a lot of pressure. I could not remember the name. And that officer also knew कि मेरे को फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा है, ये सोच रहा है। एंड देन यस। मुझे लास्ट में परेशान हो के मैंने बोला उसको सीधा ही सर मुर्मू। ग्रेट ग्रेट। देन ही टोल्ड ऑफिसर्स मी ओके भागते गौरव रहते हैं इंटरव्यूइंग आई थिंक इट ऑफिसर्स इज। कि आप कहाँ करो ये ब्लंडर। एंड देन उस टाइम पे मेरी एंट्री माई सीडीएस आईएमए एंट्री इनटू द सेम एसएसबी भोपाल। भोपाल 22 एसएसबी से भी स्क्रीन आउट होके गया था मैं उसके एक महीने बाद। देन ही आस्क्ड मी कि गौरव I can you have told me that you have also cleared CDS IMA. I said yes. Then he asked me ki Gaurav are you sure? How were you able to make it? I'm surprised. So it happened. So interviews mein to it was I believe that initially I had a very casual approach and I made many a times I I ended up making a fool out of myself. ट्रू ट्रू। हमारी इतनी हम दोनों की जर्नी और इतनी एसएसबी अटेम्प्ट से टू द व्यूअर्स यही मैसेज जाना चाहिए, और हम भी यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने झूठ मत बोलो। वो यही एक्सपीरियंस उसको सरकार दे रही है पैसे इसी चीज के लिए, तो वो आपका झूठ आराम से पकड़ लेते हैं। ठीक है, आप उनके सामने बहुत बच्चे हो। आप ऑनेस्ट रहो, आप जो चीजें जैसी हैं वैसे बताओ, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी पर्सनैलिटी उसको ढंग से समझ में आएगी। नाउ कमिंग टू योर कॉन्फ्रेंस, हाउ डिड योर कॉन्फ्रेंस गो? कॉन्फ्रेंस में क्या अतरंगी सवाल पूछे थे, या फिर कैसा गया था कॉन्फ्रेंस? वाज़ इट प्लेन और डिड दे आस्क यू मेनी क्वेश्चंस? I would say that I was acting a sigma in my conference because अभी ओके। आपको याद होगा कि जो हमारा जो गेट था ना कॉन्फ्रेंस का, इट वाज लाइक कि अगर उसे तुम हुँ, हुँ। खोल के छोड़ दोगे इट विल क्लोज ऑन इटसेल्फ। अगर आप उसे जबरदस्ती बंद हाँ, करोगे वो नहीं होगा। सो हाँ। व्हाइल आई वाज एंटरिंग माय कॉन्फ्रेंस हॉल, मैं अंदर आया, मैंने दरवाजा खोला एंड आई वाज फाइटिंग विद द डोर टू क्लोज इट एंड द डोर वुडंट क्लोज। सो द so the president of the board, he saw me fighting and the entire board was looking at me that the guy is fighting with the door. And then the president told me ki Gaurav, don't worry about the door, it will close on itself, and tell us how are you. And I wished him, मैं डोर पे खड़ा हूँ दरवाजा पकड़ के, and I told him good morning sir, and he told me good morning Gaurav, how are you. Then मैंने वहां पे उसको प्रेसिडेंट साहब को नहीं बताया कि मैं कैसा हूँ। आई वेंट टू द चेयर, मैंने आराम से लगा के कमर आराम से लगा के, and then I told him sir I am fine, how are you. The president was laughing and then they all started laughing that ये क्या कर रहा है। and then he president साहब ने नीचे देखा and he laughed, he smiled a little bit, looked at me and he told me Gaurav I am also fine, and he only asked me one question कि Gaurav what are the changes that you would like to
to see in this SSB board? वही ये तो सबसे पूछा जाता है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, तकिया कलाम है इनका. तो I told him, sir, यस. there are no changes. तो कहता okay गौरव, good luck for the results. 30 सेकंड कॉन्फ्रेंस चली मेरी. And then I came out सही सही. and then I told to my buddies कि यार ये ऐसा ऐसा हुआ है. And those buggers were laughing at me. वो कह रहे हैं तू ये ऐसे ऐसे बदतमीजी क्यों करनी थी तुझे? प्रेसिडेंट साहब से ये कौन पूछता है, how are you? काफी But चिल कॉन्फ्रेंस था, काफी चिल. then I got recommended, so तो it क्या was. कह सो हाँ, कमिंग टू दैट, गेटिंग रिकमेंडेड इन योर 10th अटेम्प्ट एंड इतनी बार घर पे फोन कर करके मैंने अपनी पर्सनल जो शेयर की है एसएसबी वाली वीडियो, उसमें भी मैंने मेंशन किया है कि हर बार आप घर पे कॉल करके बता रहे होते हो कि कॉन्फ्रेंस आउट हो गया या स्क्रीन आउट हो गया या फिर ऐसा हो गया डिजेक्टेड ही. तो घर पे फोन करके बताना कि मम्मी आपका बेटा रिकमेंड हो गया है या पापा आपका बेटा रिकमेंड हो गया है, कैसा कैसा था वो एक्सपीरियंस, और कब हिट हुआ एक्चुअल में, कब हिट हुआ कि हाँ भाई रिकमेंड हो गए हैं अब, ऐसा वाला फीलिंग कब आया? When I got recommended, it was a feeling that, it is a feeling like none other. I guess you will relate. But यस, आई कैन. but my family was so habitual of hearing about my failures that I would always used to call them and say कि screen out हो गया, conference out हो गया. But then when I told them कि recommend हो गया, they thought that it would be a regular answer कि यार conference out. So when I called my father, I told him कि पापा recommend हो गया. He was like कि okay, ट्रेन पकड़ आ जा, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे. So then I told him नहीं नहीं recommend हो गया. Then my father told me कि अरे तो कोई बात नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज. मैंने बोला क्लियर हो गया. तो मैं थोड़ी आसान भाषा में बोला. Then he was like कि okay, अब आगे. Then I told him कि अभी medicals वगैरह होंगे. Then he was very happy. He told me कि okay, take care of the medicals and जो blessings वगैरह देते हैं. But talking about when does it hit, I think it has not yet hit me. But अभी उसका रीजन बताता हूँ कि जब मैं बीच में वहां पे मेडिकल्स में हम सो रहे होते थे, मेरी सबसे पहले आंख खुलती थी एंड आई वुड स्टिल लुक एट माय गोल्डन चेस नंबर कि क्या मैं सच में रिकमेंड हो गया हूँ. तो मैंने कई बार रात में ऐसा हुआ, आंखें खुली एंड आई लुक्ड एट माय चेस नंबर, बिकॉज इट इज समथिंग. जब आप कई बार फेल हो जाते हो तो यू स्टार्ट बिलीविंग दैट फेलियर इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि वो चीज आपने बहुत दूर से देखी है, रिकमेंडेशन तो. और जब वो चेस नंबर आपके हाथ में अपना होता है तो यू यू हैव टू चेक इट एवरी नाउ एंड देन. इनफैक्ट जब हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए खड़े थे ना, जब हम रिकमेंड होने के बाद अपने ये डिप्टी प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे, तो एक लिस्ट आई थी, उसमें हम सबके नाम लिखे हुए थे. सो आई वाज लुकिंग एट दैट नेम एंड आई वाज स्टिल थिंकिंग कि अभी एडमिन वाले लोग आएंगे और वो बोलेंगे कि अरे इसमें एक मिस्टेक हो गई, एक कैंडिडेट का नाम गलत ऐड कर दिया. ये बिकॉज वो जब तक फॉर्म्स भर के वो डिलीवर नहीं हो गए, तब आई रियलाइज कि नहीं, अब मैं सच में रिकमेंड हुआ बैठा हूँ. तब इट हिट अ लिटिल बिट. और अभी तक तो ये कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाया है एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस. वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट फैक्ट है, एंड ट्रू, वेरी ट्रू. हाँ, आई वाज आई वाज विद गौरव भाई ओनली ड्यूरिंग द मेडिकल्स, तो आई कैन टोटली अश्योर यू कि हाँ, हम लोग अपने चेस्ट नंबर उठ उठ के कभी कभार देखते थे कि हाँ भाई रिकमेंड, ये रियलिटी है. ठीक है. इतने अटेम्प्ट्स के बाद वी आर फीलिंग वी आर फॉर्चुनेट इनफ, and the credit goes to all the people around us, all the blessings of the elders, and the learnings that we had through our failures. So Gaurav bhai, thank you so much for sharing your experience. इतना fun experience रहा, इतने fun incidents आपने share किए, and you are a very fun guy. Staying with you throughout the SSB process was fun, and sharing the recommendation story with you is also very fun. I wish you all the very best. एंड जाते जाते जो नए जो हमारे फ्रेशी हैं या फिर जो बंदे ट्राई कर रहे हैं, जो होप अपनी गिव अप कर चुके हैं, उनके लिए कोई लास्ट मैसेज कुछ देना चाहोगे तो वो देते हुए जाओ. First of all, I would like to thank you, Shivender, to have invited me on this in this platform that I go to share my experiences with you and with the rest of the people who will be watching this video. And it was, I think, SSB ने जो मेरे को सबसे बेहतरीन चीज दी है वो है आपके जैसे बेहतरीन दोस्त. जो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि यू गेट पीपल विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. हमारा पेट दुख जाता था एसएसबी में जब हम एक दूसरे की कहानियां सुनते थे. नाउ कमिंग टू द फ्रेशीज, आई वुड से कि डू नॉट गिव अप एवर.
You must not give up, because it is a process. Nobody makes it, not everybody can make it in the first time, but that doesn't make you any lesser than those who get recommended. So do not give up. It is a process of learning. It is a process of making mistakes and accepting them. Accept yourself. मेरी सबसे बड़ी टिप ये है कि अगर आप अपने आप को, जब तक अपने अंदर आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि एसएसबी आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाएगा. तो सबसे पहले तो बिल्ड कॉन्फिडेंस विद इन योरसेल्फ, एंड दैट वुड ओनली बी कमिंग थ्रू when you work on yourself, when you have worked on your personality, when you have belief systems, when your belief system is strong in your decisions. And be very social, be very outgoing, and the most important tip is be curious. आप अगर curious रहेंगे, you will absolutely learn and you will absolutely ponder. Do not stop learning. Be curious. Great, great. Thank you for all your insights. Thank you for sharing your experience. It was nice talking to you, Gaurav. All the best for your further journey and academy में जाओ, रगड़ा खाओ, मजे करो. Thank you.